لیکن اتفاق ایسا ہے کہ جب صرف ایک ادارے کی آپ بات کرتے ہیں جیسے لوکل گورنمنٹ کی تو آپ یا حکومت کے زمانے سے شروع ہوا تو اس میں بھی ایک یہ صورت اقتصادی اثرات اور سیاسی تعلقات پر گہرے اثرات پڑے ہیں۔ عالمی برادری سنجیدہ سفارتی کردار ادا کرتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے حامی ہیں۔ ہماری جماعت ریاست اور اداروں کے ساتھ ہمہ وقت کھڑی ہے اور اداروں کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ بس سلام، پاکستان زندہ باد۔ وہ ایک اپر کلاس کی قائد بن گئی۔ آج وہ عوام کی بات کرنے کے بجائے اپنے مفادات کی بات کریں۔ ایسی سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے جو لوگ ہیں یا ان کے ساتھ میں جو پارٹیز ہیں، میں کسی کو اس پہ مبارکباد دیتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے عوام کی اس وقت صحیح طریقے سے جو ان کی نمائندگی ہے پاکستان کے عوام کی سوچ کی وہ کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس ہے، یہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کی افادیت اور اہمیت کی بات کرتی ہے، ایک پولیٹیکل جو نرسری کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 10-15 سال میں اس میں پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ آتی ہے، جیسے اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جو پچھلے 10 دن پہلے ڈیموکریٹک الائنس میں جو اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کی بھی بات کرتے ہیں، 2 نمبر دھندا کرنے والا وہ میوسل کمیٹی آج جو آپ کو لیڈرشپ نظر آئے گی انہی فیملیوں کی آپ کو نظر آئے گی۔ تو میرے دوستوں ساتھیوں، اس کو وسیع بنیاد پر جب آپ کیونکہ عام بندے نہیں ہے، چاہے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے، ان کی بحالی کی بھی بات کریں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں دوستوں ساتھیوں، جو مجھے آج موقع تو ملا تھا، میرا کام تھا آپ لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔ تو اب میں درخواست کروں گا سر آپ اپنا تعارف بھی کروا دیجیے اور 2 سے 3 منٹ آپ لے لیں تاکہ باقی لوگ تھوڑا سا صبر آصف چودھری انقلابی پارٹی کی دعوت پہ جاوید آفتاب مرکزی سیکرٹری انجمن ترقی پسند صنفین پاکستان، اور یہ شکر ہے کہ آپ نے ادبی تنظیم نہیں وہ بلکہ سیاسی تنظیم بھی ہے، اس کو بھی دعوت دی ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز بہت کڑوی باتیں ہوں گی، برداشت کیجیے گا۔ میر کے شعر سے کرتا ہوں، شاید اس شعر میں کوئی ہو جائے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لوٹے سے دوا لیتے۔ تو آپ لوگوں کا جو یہ اتحاد ہے نا، جو بنا ہے یا جو کر رہے ہیں، ہم اتحادوں کے ان کے قائل اس لیے نہیں ہے کہ یہ اتحاد بنتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ بیٹھے چودھری صاحب 60 سال کی تجربہ لے کے، جتنے وسائل آپ لوگوں کے پاس ہیں اتحاد میں، ہمارے پاس 15% بھی نا پورے ملک میں آگ لگا دیں۔ سب سے پہلے تو سپریم کمانڈ جو لیڈر ہے ایران کے، ان کی شہادت پہ تعزیتی قرارداد پیش کریں۔ ایران اور اسرائیل وہ پاس کیا اپنے ایران اسرائیل کا حملے کی ساری مجموعی طور پہ نام لے کے۔ ہمارا مذہب رنگ نسل ذات پات سے تعلق نہیں ہے، لیکن ایک جو سنتے ذرا میں کر دوں گا، وہ جو ایک بدماش سامراج ہے، امریکہ ہو گیا، سعودیہ ہو گیا، آپ کی ریاست بھی بدماش سامراج سے کم نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں پیش کی، وہ جا کے صرف افسوس کر رہے ہیں، افسوس بھی نہیں کیا انہوں نے۔ میں سن رہا ہوں سارا کچھ، ساتھ انڈیا بدماش سامراج، سعودیہ بھی، ساتھ ایران بھی کمپنیاں، ہم کسی مذہبی حوالے سے نہیں بات کر رہے، لیکن بہرحال کم ٹو دی پوائنٹ، آپ کی کوئی ترمیم جو یہاں کے سپریم کمانڈر ہے نا، انہی کی اجازت سے آپ کی کٹ پتلی حکومتیں پاس کرتی ہیں۔ یہ 28ویں 27ویں ترمیم صاحب نے کہی تھی، کوئی آپ کی خود نہیں پاس ہوتی، پارلیمنٹ کوئی آپ کی آزاد نہیں ہے، نہ آپ کی مذہبی جماعتیں آزاد ہیں، نہ آپ کی لیفٹ جماعتیں آزاد ہیں، نہ آپ کی رائٹ جماعتیں آزاد ہیں۔ اب آپ جو بلدیاتی کی بات کرتے ہیں، بلدیاتی الیکشن کی بات کرتے ہیں، آپ جس ٹو دی پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں، سارا کچھ آپ یہاں پہ لے بیٹھے ہوئے، اتنی ماشاءاللہ سے 20-25 پارٹیاں۔ پہلے تو پورے ملک میں آپ سب کی پارٹیوں کی کتنی اہمیت ہے، کتنی پورے ملک میں ان کی یونٹ بنے، کتنی آگ لگی ہوئی ہے، وہ پہلے وہاں سے شروع کریں تاکہ ہمیں اور آپ کو عام عوام جانے، آپ کے لوگوں کو عام عوام جانے۔ آپ کے اس پروگرام میں ادیبوں، شاعروں، فنکاروں، دانشوروں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔
اس پروگرام کے بعد آپ کا کوئی انقلابی مزاحمتی مشاعرہ ہونا چاہیے، انقلابی مزاحمتی گیت ہونے چاہیے. آپ لوگ طلبہ، سیاست اور مزدور کسان کو تو جوڑ لیتے ہیں، جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، جس سے اسٹیبلشمنٹ ایجنسیاں اور مافیا کی، اگر آپ پابلو نرودا، محمود درویش، سارتر، فیض جالب کو سمجھتے ہیں نا، اور ان لوگوں کو، بھگت سنگھ وغیرہ کو، تو ان کے نقشے قدم پہ چلیں. حسین کا انکار یا جو انکار ہوتے ہیں نا، وہ شروع سے ہوتے ہیں. پہلے آپ گود میں بیٹھ کے آ جائیں، بعد میں آپ حسین بن جائیں، تو وہ نہیں ہوتا. نہ سسٹم اجازت ہے، نہ آپ کا خدا آپ کو معاف کرتا ہے. تو اس بلدیاتی نظام کے لیے پہلے تو یہ کہنا کہ ہم کتنی وقت ہے، ہماری کتنی اہمیت ہے، ہم کتنا کام کر رہے ہیں، ہمیں جانتا کون ہے پورے لاہور کیا پورے پاکستان میں. پاکستان تو چھوڑیں، لاہور میں کتنا ہم ان پارٹیوں کو جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فقط خاک ہوں، ایک نام محبت سے ہے نسبت میری. یہ بھی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے. راجپوت باسق فیصل، پاکستان نظریاتی پارٹی، سوشل میڈیا اینڈ ووٹ خاطر. تمام بھائیوں نے بات کی موضوع کے اوپر کہ ملک کے اندر ہمیں ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے. ہم نے 1947 سے لے کر اب تک دیکھا جن خاندانوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ان کا حشر ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ میں عرض کروں گا ہم اپنی جدوجہد کر سکتے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ کچھ ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مرشد میں لڑ نہیں سکا پر جیتا رہا، خاموش رہ کے ظلم کا حامی نہیں رہا. ٹھیک ہے، اور دوسری عرض یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بلدیاتی نظام کے اوپر. بلدیاتی نظام، سب سے پہلے تو میں اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں جو بلدیاتی فنڈز ہیں وہ ایم پی اے اور ایم این ایس کو کیوں دیے جاتے ہیں، اور جو فنڈز ایم این اے اور ایم پی ایس کو دیے جاتے ہیں وہ اوپر والی سطح وہ کھاج دی جاتی ہے، اور جب ایک بندہ کوئی گٹر میں گرتا ہے تب مافیا کو یاد آ جاتا ہے جی ہم نے گٹر کا ڈھکن لگانا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے، اور اینڈ پہ میں ایک شعر عرض کروں گا، وہ سنگے گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے راہ روح ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے. یہ بات عیاں ہے دنیا میں، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. بہت بہت شکریہ. میں دیکھ رہا ہوں ایک بات یہ ہے کہ جس وقت کسی سماج میں یہ نظریہ جڑ پکڑ جائے کہ اس سماج میں جو بھی قانون ہے، نظام ہے، اس کی موجودگی میں میرے کسی مسئلے کا حل موجود نہیں ہے، یہ ہے وہ انقلابی لمحہ جب انسان جو ہے وہ اس بات پہ غور کرتے ہیں، وہ اس بات کو سوچتے ہیں کہ آیا اس نظام کو رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. ہمارے یہاں پشتوں کی مثال ہے کہ کار نہ وقت شی بے وقت شی، جو وقت پر کام نہ کیا جائے بیکار ہو جاتا ہے. میری آپ لوگوں سے التماس ہے ایک بات کو سوچیں کہ اب کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم پرنسپل کنٹراڈکشن کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس پر کام کریں اپنا. شکریہ. اعلیٰ لوگ اعلیٰ صف کے بیٹھے ہوئے، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میرا جو موقف ہے وہ حکومت پاکستان کی طرف ہے. میرا نام کی میاں محمد طاہر انقلابی ہے. میں مرکزی سینئر وائس چیئرمین بین المذاہب حکومت پاکستان کا ایک نمائندہ ہوں. میں مرکزی جوائنٹ سیکرٹری امام اصل کوثر پاکستان کا ایک نمائندہ ہوں. مجھے چند سیکنڈ پہلے کال آتی ہے جب میرا رابطہ ہوا ہے آصف بھائی سے. میرے چھوٹے بھائی بڑے پیارے بڑے غیور انسان ہیں، بڑی محبت والے ہیں. تو مجھے میرے قبلہ چیئرمین صاحب ہیں پیر ناصر عباس قادری صاحب سینئر ایڈوکیٹ آرائی کو، انہوں نے مجھے بولا بھی آپ میری طرف سے آپ نمائندگی کریں اور آصف بھائی کو وہ پروٹوکول دینا ہے کسی کی سوچ بھی نہ ہو. میں سب کو پروٹوکول دینے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ حکومت کی طرف میں پریس کلب میں کھڑا ہوں، حکومت کو فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے یہ لوگ بیٹھے ہیں، نمائندے بیٹھے ہیں، ہم کوئی اللہ معاف کرے ایرے گہرے نہیں ہیں، اس پاکستان کے نمائندے. اسی پاکستان سے ہمارے بڑوں کی زندگیاں، محبتیں، کاوشیں، سوچیں وابستہ رہی ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے ہیں. میں صبح خیبر پختونخوا کا چیئرمین ہوں، بلوچستان کا چیئرمین ہوں، میں سندھ کا بھی چیئرمین ہوں. آصف بھائی جانتے ہیں الحمدللہ، اللہ نے بڑی عزت دی ہے، لیکن یہ سب لوگ مجھ سے زیادہ افضل ہیں. میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. حکومت کو چاہیے کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر آئیں
अपनी नुमाइंदगी भी दिखाएं, अपनी गुड गवर्नेंस भी दिखाएं, ताकि ये बल्दियाती निज़ाम चालू हो, शुरू हो, पता चले यार इस मुल्क में अभी जमहूरियत का सिस्टम बहाल होने जा रहा है। बकाया इंशाल्लाह ताला चौधरी आसिफ साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। इज्जत की जगह पर जो लोग बैठे हैं मेरे इनसे ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मेरी पहली ये सिटिंग है आपके साथ लाहौर प्रेस क्लब के अंदर। मैं तमाम लोगों का तहे दिल से मशहूर हूँ। इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम होते हैं, असफ भाई आते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको भी दावत दूंगा सुबह सरहद के अंदर, सिंध के गिलगित में, चतराल में, कि आपको की खिदमत हो फी सबीलिल्लाह। ये लाहौर प्रेस क्लब में बता रहा हूँ, हुकूमत ने अपना काम करना है, लेकिन हमने चौधरी आसिफ साहब की जो टीम है पाकिस्तान अफवाह पार्टी, हम इसको सबूत पेश करते हैं। मेरे भाई ने बोला इनके साथ कोई, मैं अभी क्या कहूँ, हमारे बुजुर्ग है भाईजान, इनके साथ पूरी तंजीमें हैं, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे चेयरमैन साहब मौजूद नहीं है, उन्हें भी साहब आपने जाके नुमाइंदगी करनी है। इनके साथ तमाम उलमा कराम हैं पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे मैं नुमाइंदा हूँ सरकारी तौर पे, मैं खिदमत करता रहा हूँ उलमा कराम की, और आज तक मैंने अपने आप को ऊंचा लफ्ज नहीं बोला, यही बोला मैं किसी के कदमों की कागज़ नहीं हूँ। सिंधु एडवोकेट, मैं प्रेसिडेंट हूँ आवामी वर्कर्स पार्टी का और चेयरमैन हूँ 38 तहरीक। अच्छा, चूँकि आज मौजू है बल्दियाती इलेक्शन, तो 38 तहरीक जो है उसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान और शहरी के दरमियान जो सोशल कंट्रैक्ट है उसको पूरा किया जाए, और ये सोशल कंट्रैक्ट पूरा करने के लिए जो इस पे इम्प्लीमेंटेशन पे टूल है उसे कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, बल्दियाती इलेक्शन। अब ये सोशल कंट्रैक्ट क्या है, 1 मिनट में ये बात, और 1 मिनट में कि इसके इम्प्लीमेंटेशन कैसे मुमकिन। तो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 38 में जो बात दर्ज है वो ये है कि पाकिस्तान के शहरी रियासत पाकिस्तान को टैक्स देंगे और लॉयल्टी देंगे, और उसके बदले में रियासत पाकिस्तान हर शहरी को इन टैक्स के पैसों से तालीम देगी, इन टैक्स के पैसों से हर शहरी को हाउसिंग देगी, इन टैक्स के पैसों से हर शहरी को सोशल सिक्योरिटी, हर शहरी को रोजगार, हर शहरी को जिसे जब तक रोजगार नहीं मिलता उस वक्त तक उसे बेरोजगारी अलाउंस देगी, हर एक शहरी को इन टैक्स के पैसों से सोशल सिक्योरिटीज दी जाएगी और उसको छोटे छोटे कारोबार करके दिए जाएंगे ताकि लोग खुशहाल रहें। और ये कंट्रैक्ट जो है पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 38 में दर्ज है, और वहाँ ये दर्ज है कि इन पैसों का जो टैक्स के पैसे इकट्ठे होते हैं और पाकिस्तान के जो मदनी वसाइल हैं इन पे चंद लोगों का कंट्रोल नहीं होने दिया जाएगा, दौलत को चंद हाथों में इर्तिकाज नहीं होने दिया जाएगा। और इसके लिए बुनियादी तौर पे ये लोगों की तालीम, सेहत, रोजगार के जो मसाइल हैं वो हमेशा लोकल गवर्नमेंट हल करती है। दुनिया में हर जगह पे लोकल कौंसिल है जो ये तयन करती है कि इस कौंसिल में कितने बच्चे इस साल में पैदा हुए हैं और कितने बच्चे हैं जिनको स्कूलिंग की ज़रूरत है, कितने लोग हैं जो रोजगार में हैं और कितने लोग हैं कि जो जिनको बेरोजगारी अलाउंस की ज़रूरत है। ये लोकल गवर्नमेंट का काम है। और मैं तजवीज़ के हवाले से समा करिए तो काफ़ी सारे लोगों को माफ़ी चाहता हूँ, तो थोड़ा सा तजवीज़ के हवाले से हम मैं आपको माफ़ी नहीं देता, मैं एहतजाज करता हूँ। नहीं एहतजाज करना, नहीं इकट्ठे चलना है। ज़्यादा लेंगे स्टेज पे बैठे हुए लोग तो फिर इस पे एहतजाज होगा।
ये 2 मिनट इंतजार आपस में नहीं हमने कर सकते, आपने अपने मोहब्बत कर दी, सरकार आपने मोहब्बत कर दी। मैंने आपसे एक बात शुरू करने से पहले ये कहा था कि 2 मिनट मैं लूंगा, अगर आप ना बोलते तो मैं अभी खत्म कर चुका होता। सर बिस्मिल्लाह सर, कैरियर सर। तो गुजारिश ये है कि जो एक मुआशी तौर पे खुद मुख्तार बाख्तियार लोकल गवर्नमेंट है वो किस तरह से बनती है, वो इस तरह से बनती है कि आज हम अगर यहाँ गड़ी शाऊ में बैठे हैं और फर्ज कीजिए कि गड़ी शाऊ में 100 रुपया टैक्स इकट्ठा होता है रोज का, तो उसमें 50 रुपए गड़ी शाऊ पे लगेंगे लोकल गवर्नमेंट के जरिए और 50 रुपए उसमें से वफाकी गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी। ये तरीकाकार है और ये पैसे कितने हैं आप ये अंदाज़ा कीजिए कि सिर्फ GST टैक्स जो हम 100 रुपये में से 18 रुपये सिर्फ GST टैक्स देते हैं और पाकिस्तान की 28 से 30 करोड़ आबादी है, 1 मिनट में कितने 100 रुपये खर्च होते हैं और ये खरबों रुपया है। ये रियासत जो कि एक कानूनी रियासत है, ये आपसे जब से ये बनी है ये झूठ बोल रही है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये जितने के पैसे इकट्ठे हो रहे हैं ये एक कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान में लिखा हुआ है, पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, सिर्फ उसके मुताबिक खर्च नहीं हो रहे और उसको खर्च करने का वाहिद अदारा लोकल गवर्नमेंट है। जितना इन पैसों पे ब्यूरोक्रेसी का कब्जा है वो तमाम का तमाम गलत है। अगर आपको एक मजबूत लोकल गवर्नमेंट चाहिए तो फिर आपको सिविल, मिलिट्री और अदालती ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ भी जदोजहद करनी होगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। आगे आप कुछ कहना? हम ये देखते रहे हैं कि आज डेमोक्रेसी आती है, जमहूरियत आएगी तो हमारे गाँव के मसाइल हल हो जाएंगे, कौमी सूबाई असम्बलियाँ बनेगी, बलदियाती इंतखाबात आएंगे, वहाँ पर मसाइल हल हो जाएंगे। वो फ्लॉप हो जाते हैं तो हम अगले 5 साल में उम्मीद लगा लेते हैं, आर्मी अटैक करती है तो फिर टिप आ जाती है, हम उस पर उम्मीद लगाते हैं कि वो मसाइल हल कर देंगे। वो बलदियाती इंतखाबात में के बाद मसाइल जो होंगे तो रहते हैं। पिछले 50 सालों में 70 सालों में मसाइल जो होंगे तो ही है, कुछ नहीं हल हुआ तो आइंदा भी कुछ हल नहीं होगा। ये जो बलदियाती इंतखाबात हैं ये भी हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ये जो निज़ाम इंटरनेशनल गुंडों ने, बदमाशों ने, लटेरों ने, चोरों ने, बैन अवी लटेरों ने जो मुआशी निज़ाम पाकिस्तान के अंदर मुआशी है, सियासी है, इक़्तिसादी है, जो भी निज़ाम यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है अपने यहाँ के अंदरूनी गुंडों के जो चला रहे हैं, ये निज़ाम जो है ये तबाह करना है। ये तमाम जमातें यहाँ बैठी हुई हैं, ये तमाम जमातें यहाँ बैठी हुई हैं। हम वो बलदियाती इंतखाबात या आम जनरल इंतखाबात तक देखने के बजाय जद्दोजहद का आगाज़ करें, इनकलाबी जद्दोजहद का, मिलजुल के एक प्लेटफॉर्म बनाएं और जिसमें ऐसा एक निज़ाम तश्कील दिया जाए कि जिसमें वो ना सिर्फ अंदर के गुंडे बेबास हों लेकिन इंटरनेशनल गुंडे पुलिस बनाने वाले भी उसके सामने बेबास हो जाए। यहाँ थोड़ी जमातें नहीं बैठी। ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि दोस्तों ने मुख्तलिफ हवाले से बातें तो की हैं, लेकिन असल में जो ये सेमिनार तो मुझे नहीं लगता, ये तो वैसे मुशावरत की इजलास है, सेमिनार का डेकोरम ही नहीं रहा इस वक्त। बात यह है कि बाकी दोस्तों ने बातें कर ली हैं, कुछ स्टेज पे बैठे करेंगे। असल में यह है कि तजवीज़ क्या, जो कि सबसे ज़्यादा जोर देने वाली बात है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो हम लोगों तक कैसे लेके जाएं। हम जितनी भी मीटिंगें कर लें, सेमिनार कर लें, मेरा ख्याल है उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा कि जितना अगर हम जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर हर यूनियन काउंसिल के हल्के में हम 10-10, 20-20 लोगों के पास जाके हमारे 2 बंदे जाएँ, 3 बंदे जाएँ, वहाँ पे अरेंज करें और उसके बाद वहाँ पे हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के हवाले से बातें, क्योंकि एक तो ये लगता नहीं कि इलेक्शन होंगे, अगर इलेक्शन हुए, क्योंकि इलेक्शन बलदियाती जो कवानीन है उसके अंदर भी बहुत सारे सुगम हैं, वो अभी तक दूर नहीं हुए और उसकी भी निशानदही करनी है आप लोगों को, क्योंकि आप दाई हैं बलदियाती इलेक्शन करवाने के और बलदियाती इलेक्शन में जाने के।
तो लिहाजा इसके अंदर जो सुकम है इस कानून के अंदर, हमारे पास वकील और बात बैठे हैं, मेरे ये अपना साहब बैठे हैं, इश्तियाक साहब हैं, उनको चाहिए कि जो कानूनी हवाले से उनके बारे में उनको लोगों को आगाह करें ताकि लोग उसमें शामिल हों। और दूसरी बात ये है कि हमें हर यूनियन काउंसिल में जाके लाहौर के तकरीबन 8 टाउन में, 8 या अब तो शायद ज़्यादा हो गए होंगे, हमें हर टाउन यूनियन काउंसिल से लेकर टाउन तक जाना चाहिए और वहाँ पे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस को भी मुतारफ कराना चाहिए। बल्दियाती अदारे जो हैं उनकी अफादियत क्या है, वो अफादियत करती है और वह निर्भर करती है। दुनिया के अंदर जो बल्दियाती अदारे हैं उसके पास तकरीबन 22 से 23-24 महकमे जो है वो बल्दियाती अदारों के पास है। MNA MK के पास इतने इख्तियार नहीं है जितने इनके पास हैं। तो लिहाजा अगर हम लोगों को शऊर नहीं देंगे, किस वक्त मुशर्रफ ने करवाई थी उस वक्त यहाँ की बहुत सारी तंजीमों ने उसके बारे में काम किया था, उसकी अफादियत में बात की थी, बल्दियाती अदारों में बात की थी। तो सबसे अहम बात यह है कि हमें चाहिए कि एक प्रोग्राम तरतीब दें और उस प्रोग्राम के तहत करें। बाकी रह गया कि ये हम बात है हमारी बल्दियाती अदारों की और हमारे दोस्त जो है वो शुरू कर देते हैं इनकलाब से, हम शुरू कर देते हैं पाकिस्तान नेशनल पार्टी और नेशनल पॉलिटिक्स से। भाई हम बुनियादी ग्रास लेवल से शुरू करना चाह रहे हैं। हम इनकलाब की बात नहीं करेंगे, लेकिन जिस वक्त इनकलाब की बात करने का वक्त होगा, आज अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे बल्दियाती सिस्टम जो है उसको इवॉल्व होना चाहिए, बल्दियाती सिस्टम जो है वो हमसे मिलना चाहिए ताकि हमारे बुनियादी मसाइल जो है वो हल हों। तो उसके लिए हम सियासत करते आए सारी ज़िंदगी, ट्रेड यूनियन सारी ज़िंदगी हमारे दोस्त करते आए। जो ट्रेड यूनियन का प्लेटफार्म है वहाँ पर ट्रेड यूनियनिज्म करेंगे, जो नेशनल पॉलिटिक्स का प्लेटफार्म है वहाँ पर नेशनल पॉलिटिक्स करेंगे, और जहाँ इनकलाब करने का मौका है वहाँ इनकलाब भी करेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे ना पीछे हटेंगे। लेकिन हर काम का और हर जो है उसका एक वक्त है, उस वक्त के मुताबिक उस प्लेटफार्म के तहत हमें बात भी करनी चाहिए, काम भी करना चाहिए और उसको लेके आगे भी बढ़ना चाहिए। और हमें मैं तो ये बात बोल रहा हूँ कि हमें यूनियन काउंसिल है, देखो कल को यूनियन काउंसिल बदल भी जाए लेकिन लोग तो वही रहेंगे ना, अदारे थोड़ा बहुत एक डेमोक्रेशन बदलेगी ना, लोग वही रहेंगे। लेकिन हमें चाहिए कि हम इस काम को शुरू करें और इस नेशनल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के प्लेटफार्म से आप कुछ बंदों की ड्यूटी लगाएं, वो और जो लोग अपने अपने इलाके में अपने अपने हल्के में मीटिंग अरेंज करना चाहेंगे वहाँ जाएँ, लोगों को शऊर दें और लोगों को इनकरेज करें। इस पे इसी मौजू पे कुछ लिखा था वो आपके सामने खिदमत में पेश करता हूँ। अजीज पाकिस्तानी हमवतनों, हमारा खित्ता और पूरी दुनिया इस वक्त बड़ी सियासी, माशी और जंगी तब्दीलियों का मसला है। पाकिस्तान आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां हमें अपनी कौम की खुशहाली और मुस्तकबिल के लिए अपना लाहा अमल तय करना है। गुज़िश्ता चंद रोज से अमेरिकी साम्राज्य और इसराइल ईरान पर एक बड़े हमले की शुरुआत कर चुके हैं। ईरान ने भी जवाबी हमलों के तौर पर इसराइल के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर हमले किए। इस वक्त हमें दुनिया की बदलती सियासी सूरत हाल पर गहरी नजर रखने की जरूरत है। माजी से व्यवस्था हालात के पेश नजर कुछ चीजें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मसलन अमेरिका, इसराइल और यूरोप वक्ती बाहमी मुफादात के टकराव के बावजूद मुस्तकबिल में एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। नंबर 2, अरब ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डे और हथियार ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। हमारे अरब इस्लामी भाई इसके खिलाफ बोल भी नहीं सकेंगे। ये अफसोसनाक बात है कि मुसलमान ममालिक से मुसलमान ममालिक पे हमला होगा। और तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे इसराइल के तनाजुर में ये बात समझने के लिए सुकरात का दिमाग नहीं चाहिए कि आने वाले वक्तों में इसराइल, भारत और अमेरिका एक साथ में खड़े होंगे और जो मुसलमान ममालिक आज एक वाज़े नुक्ता नज़र नहीं लेंगे वो इस सहमुखी इत्तेहाद का बिलवास्ता या बिला वास्ता हिस्सा बन जाएगा और बाद में अपने फैसले पर हाथ रखते रह जाएंगे।
दुनिया इस वक्त आलमी तजारत की जंग में तेज़ रफ्तारी से तब्दीलियाँ हो रही हैं। दुनिया के इजाफी पैदावार करने वाले ममालिक ने तीसरी दुनिया में मंडियों की तकसीम में अपने अपने मफादात हासिल करने की दौड़ में दुनिया को एक नई तरह से तब्दील कर दिया है। मौजूदा सूरत हाल में वाज़ेह नुक्ता नज़र आ रहा है कि आइंदा कुछ सालों में अमेरिका अपने अंदरूनी मसाइल में उलझेगा और ख़ुद अपने मुल्क में मुख्तलिफ तबकात के दरमियान दौलत की तकसीम की गैर मुनसिफाना तकसीम पर अमरीकी साम्राज्य की ये मसला अमरीकी साम्राज्य की जड़ों में बैठेगा। दूसरी तरफ चीन, रूस और दीगर ब्रिक्स के ममालिक दुनिया की तजारत में बराबर और मुनसिफाना हिस्सा डालने के लिए तैयार है। ब्रिक्स क्लब जो दुनिया में पेट्रो डॉलर और अमरीकी डॉलर जिसके पीछे किसी किस्म की गारंटी मौजूद नहीं है के मद्दे मुकाबिल एक नया तजारती निज़ाम मुतारफ करवा रहा है, जिसकी वजह से अमरीकी डॉलर की वैल्यू मुनहदम हो सकती है। अमरीकी साम्राज्य की गिरती हुई ताकत और दुनिया के एशियाई ममालिक जो शुमाल मशरिक और शुमाल मगरिब में शामिल हैं, इनके साथ दीगर ममालिक का इत्तेहाद दुनिया की आइंदा सियासी और मुआशी सूरत पर गहरे असरात को मुरतब करेगा। यहाँ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सवाल यह होगा कि इस वक्त हम वक्ती मफादात के तहत ईरान पर हमला करने की हिमायत करें या मुखालफत। पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी की आजाना राय यह है कि पाकिस्तान को अमरीकी मफादात से हटकर चीन, रूस और ईरान जैसे साम्राज्य मुखालिफ ममालिक के साथ खड़ा होना चाहिए। यही मशवरा हम अपने अरब दोस्तों बशमूल मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदीया और कुवैत को भी देंगे। दूरदराज सियासी नज़र न रखने हुए वक्ती फैसले हमेशा बाद में पछतावे का सबब बनते हैं। इसके साथ ही अगर कोई हमारा यहाँ पे एजेंसियों का नुमाइंदा बैठा है तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारा पैगाम ऊपर पहुँचाया जाए कि इस वक्त जो गैर पॉपुलर गवर्नमेंट हमारे सरों पे मुसल्लत की गई है और जिससे पाकिस्तानी अवाम बुरे तरीके से मैं समझता हूँ मायूसी का शिकार है, उसको रिप्लेस करने की जरूरत है। और जैसे आज ये तमाम जमातें जो अवाम की नुमाइंदा जमातें हैं और इस हॉल में मौजूद हैं, यही चीज़ अगर जो है वो आज हमारी पीपल्स पार्टी, नून लीग, इवन मैं कहूँगा कि PTI, अवाम इनसे मायूस है और अवाम को इस वक्त नई क़यादत की ज़रूरत है। तो बराह करम अवाम को नई क़यादत दें ताकि अवाम एक नए जज्बे के साथ पाकिस्तान की तामीर में मसरूफ़ हो। बहुत शुक्रिया। सेमिनार कर रहे हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है और उसके मुताबिक मैं कुछ गुजारिशात जो है वो करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं, इनको प्रेस मीडिया अपने अंदाज से देखे। बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हम स्टेप बाई स्टेप मैं कोशिश करूँगा कि इंतहा एक मुख्तसर वक्त में ये चीज़ें मैं बयान करूँ। सबसे पहले बात यह है कि जैसे मेरे दोस्त NSF वालों ने अपने तलबा यूनियन की बहाली का जिक्र किया है, मैं इसको सबसे पहले अहमियत देता हूँ। ये बल्दियाती इलेक्शन से भी ज़रूरी है और ये उससे भी ज़रूरी है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारा रास्ता है, हम उनके साथ खड़े हैं। वो ये ना समझे पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी हो या मुस्लिम लीग कौंसिल या चौधरी अख्तर अब्बास आपके साथ है, तो इंशाअल्लाह ताला हम वक्त दूर नहीं है कि हम अपने मुतालबात मनवा लेंगे। सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट ये है, इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं तो हमारी इस मुनसफाना और एक शरीफाना मुतालबे को वो तस्लीम कर लें। बसूरत दीगर हम लोग गली महल्ले में भी एहतजाज कर सकते हैं और वो हंगामा आ रही थी हम बचना चाहते हैं। अगर वकलात तंजीमें, कल ही लाहौर हाई कोर्ट में बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ है, उससे ज़्यादा इलेक्शन तो तलबा का पीसफुल होता है, उसकी इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? क्या वकला हज़रात जो हैं वो अपनी मनमानी कर सकते हैं? हुकूमत उनके पास बेबस है, उनके सामने उनकी कोई बस नहीं चलता, इसलिए वो अपने इलेक्शन कर सकते हैं।
और हम लोग जो बल्दियाती इलेक्शन का मुतालबा करते हैं वो हमारा इवन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। उससे पहले महीना डेढ़ बल्दियाती इलेक्शन की हल्का बंदियों और तमाम दीगर इंतजाम भी किए गए, लेकिन ऐन वक्त पे आके उन्होंने तजवीज़ दी थी इलेक्शन कमीशन के जरिए नोटिफिकेशन एक हुक्मनामा जारी किया था, वो नहीं हो सकी। दूसरी बात ये है इस वक्त हम जिस हालात में, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने छोटे छोटे मफादात से निकल कर एक बड़े मकसद पर इकट्ठा हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाती कि हम छोटी चीज़ों के लिए आपस में झगड़ पड़ते हैं लोगों के लिए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक कॉमन एजेंडा बना लें और उस एजेंडा पे आप लोग मुतहद हो जाएं। तो ये आपका जो इत्तेहाद है ये बहुत ही अहम साबित हो सकता है इस मुल्क की तकदीर में। मैंने मगरिब में रहा हूँ काफ़ी देर, पढ़ा भी हूँ, मैंने उनके लोकल बॉडी सिस्टम को बहुत करीब से देखा। उनका जो लोकल बॉडी सिस्टम है वो इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि अगर अमेरिका पे सदर या कोई चीज़ें बदलती भी रहें उनके लोकल बॉडी पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कम्युनिटी के हाथ में। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल स्टेप दूंगा जो मैं पिछले दिनों शराज अल्ताफ साहब के हल्के में गया और हमने उस कम्युनिटी को देखा। तो आप अपनी जैसे बात हुई यूनियन काउंसिल, लेकिन यूनियन काउंसिल में जब आप लोग जाएं तो वहाँ की कम्युनिटी में से जो अच्छे लोग हैं उनका कम्युनिटी बोर्ड बनाए। तमाम जो जिम्मेदारियाँ अपने हाथ में ना लें। जब तक आप अपने लोगों को जिम्मेदारी का एहसास नहीं देंगे उनके अंदर से वो रहनुमा बनने की सलाहियतें पैदा नहीं होंगी और वो हर वक्त मांगते रहेंगे दूसरों से। वहाँ भी मैंने ये पैगाम दिया कि आप अपने MPMN पे डिपेंडेंट ना हो, आप खुद ऑर्गेनाइज हो जाएं। आप अपनी यूनियन काउंसिल्स में कम्युनिटी बोर्ड्स बनाएं। वहाँ का जो स्कूल है उसका इंतज़ाम जो कम्युनिटी है वो अपने हाथ में, क्योंकि अमेरिका में जो उनके पब्लिक स्कूल्स हैं वो वहाँ की कम्युनिटी बोर्ड्स होते हैं वो चलाते हैं। उनके यहाँ कवानीन ऐसे बन चुके हुए हैं और बड़ी जद्दोजहद से बने हैं। याद रखें कि इक़्तिदार में जहाँ भी लोग हैं वो सियासतदान हैं या डिक्टेटर हैं, वो इक़्तिदार और ताकत अपने हाथ में रखना चाहते हैं। लेकिन वहाँ की कौम इस जगह पे पहुँच गई कि जो कम्युनिटी के फंड्स हैं वो डायरेक्ट उनके पास आते हैं यूनियन काउंसिल, उसमें हुकूमत का अमल दखल नहीं। तो आप लोगों ने अपने जो लोग हैं कम्युनिटीज़ में यूनियन काउंसिल में, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है कि यूनियन काउंसिल के लोगों को एक्टिव करें, उन्हें ऑर्गेनाइज करें, उन्हें कम्युनिटी बोर्ड्स में एंगेज करें। मैंने देखा बहुत ज़्यादा नौजवान हैं जो इस कम्युनिटीज़ में मरी। तो ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल स्टेप आपका होगा। अगर आप लोगों को जिम्मेदारी का एहसास नहीं देंगे और सिर्फ अपने ऊपर आप रखेंगे तो आप ये कभी भी इस मकसद को पूरा नहीं कर सकेंगे। और आप सबको फिर से मुबारकबाद कि माशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मैं पहले भी आया था कि ये इत्तेहाद जो है ये इंशाल्लाह आगे भी फले फूलेगा और एक इसका कौम को यकीनन फ़ायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये आज का सेशन ख़त्म नहीं होगा। आज का मकसद ये था कि आपस में हम थोड़ा सा इब्तदाई सलाह मशवरा कर लें और आगे किस तरह बढ़ना है ये हम सब मिलकर अपनी जॉइंट एफर्ट्स के साथ इस गाड़ी को आगे चलाएं ताकि ये गाड़ी हकीकी मानों में आगे चले। तो ये मीटिंग अब हमारी जारी रहेगी और हम मुशावरत इस लाइन्स में करेंगे कि आगे किस तरह चलना है और इसको किस तरह से तहरीक को मौसर बनाना है। तो आज के मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ सुबह रात का कि शेलिंग के बावजूद उन्होंने डट कर बैठे रहे और बड़े हौसले और हिम्मत के साथ तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात।